پیپلز پارٹی نے سینٹرل پنجاب سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کو ماڈرن ریاست بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کا پرامن چہرہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن سیکریٹریٹ میں خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشرے سے نفرت اور تقسیم کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا سانحہ ماڈل ٹاؤن کی شفاف تحقیقات کا بھی مطالبہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو اصل پرامن چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نفرت اور اس تقسیم کی چاہے وہ سیاست ہو یا ہمارے معاشرے میں جو اس نفرت کی اضافہ ہوا ہے اس کا ہم مقابلہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہم اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک نیا سوچ اور نیا سیاست تعارف کرانا چاہتے ہیں پاکستان میں، جس کا فوکس عوام کی خدمت میں ہو، نہ کہ کوئی ذاتی ایجنڈا کے ہو۔ جہاں تک ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے اس ایشو پہ بھی مجھے نہ صرف بریف کیا مجھے دکھایا گیا جہاں آج تک انہوں نے وہ سارے ایریاز جہاں سے انہوں نے حملہ کیا تھا ابھی تک ان کے مارکس ہیں اپنے بلٹس کے توڑ کے یا جو بھی ان کا اس دن ہوا تھا وہ تمام چیزیں آج بھی موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یا یہ جو خواہش ہے کہ ایک پارشل انویسٹیگیشن کیا جائے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہو ان کو اس کا سزا ملنا چاہیے۔ این اے 130 سے نواز شریف کے کاغذات نامزد کی منظوری کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ وکیل اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ٹربیونل نے حقائق کے برعکس نواز شریف کے کاغذات منظور کیے۔ نواز شریف تاحیات نااہل ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے، انہوں نے کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپائے ہیں۔ سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی کا فیصلہ نواز شریف کے کاغذات منظور کرنے کے بعد آیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق نواز شریف کیس پر نہیں ہوتا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت نواز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا حکم دے اور ٹربیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کرنا تھی۔ بینچ کے رکن جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن کے الیکشن کیسز میں مصروف ہونے کے باعث کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے۔ سماعت بغیر کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی کی گئی۔ لارجر بینچ میں جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس شاہد کریم، جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس جواد حسن شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 5 سال نااہلی کو ختم کرنے کے لیے رجوع کیا تھا۔ عام انتخابات کے لیے لاہور کی ابتدائی پولنگ سکیم تیار۔ شہر کی 44 قومی اور صوبائی سیٹوں کے لیے 68,58,000 شہری ووٹ ڈالیں گے، جبکہ مختلف علاقوں میں 4,354 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ لاہور نیوز نے شہر لاہور کے لیے ابتدائی پولنگ سکیم کی دستاویزات حاصل کر لیں۔ قومی اسمبلی کی 14 اور پنجاب اسمبلی کی 30 نشستوں کے لیے 68,58,095 شہری ووٹ ڈالیں گے۔ لاہور میں مرد ووٹرز کی تعداد 36,36,253 جبکہ خواتین ووٹرز 32,21,842 ہیں۔ ووٹرز کے اعتبار سے لاہور کا سب سے بڑا حلقہ این اے 118 ہوگا، جہاں 7,35,251 افراد حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ سب سے چھوٹے حلقے این اے 124 میں 3,10,116 ووٹرز ہیں، جبکہ سب سے بڑے صوبائی حلقے پی پی 147 میں 3,68,998 شہری ووٹ ڈالیں گے۔ شہر میں 4,354 پولنگ اسٹیشنز اور 12,991 پولنگ بوتھ بھی قائم کیے جائیں گے، جبکہ الیکشن کمیشن لاہور کے لیے حتمی پولنگ سکیم بعد میں جاری کرے گا۔ کیمرامین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ تو خبر یہ ہے، انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد نون لیگ کی قیادت عوامی رنگ اپنانے کو تیار ہے۔ نواز شریف ملک بھر میں 60 سے زائد جلسوں سے خطاب کریں گے۔ آغاز 17 جنوری کو ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہوگا۔
आइंदा आम इंतखाबात और नून लीग की इंतखाबी मुहिम का मामला, इंतखाबी टिकटों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवाम में जाने को तैयार। नवाज शरीफ लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में गहमा गहमी और सियासी मैदान में हलचल मचाने के लिए मुतहरिक हो गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद इंतखाबी मुहिम का आगाज आइंदा बुध से करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपना पहला इंतखाबी जलसा 17 जनवरी को टोबा टेक्सिंग में करेंगे। मुल्क भर में वो 60 से ज़ायद जलसों से खिताब करेंगे। इससे कब नवाज शरीफ का 22 जनवरी को मानसेहरा में पहला इंतखाबी जलसा शेड्यूल किया गया था। पहले शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ ने 20 से 26 जलसे करने थे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने अपने कायद के जलसों के नए शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी है। नवाज शरीफ इंतखाबी जलसों में जारहाना अंदाज अपनाएंगे। मरियम नवाज भी अवामी इज्तिमात में जारहाना रवैया ही इख्तियार करेंगी, जबकि पार्टी सदर शहबाज शरीफ अवामी जलसों से मुसालिहाना और अवामी मंसूबों के हवाले से खिताब करेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी इज्तिमा से खिताब का आगाज करेंगे। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात का हक है, वक्त पर इलेक्शन ही मुल्क की ज़रूरत है। चेयरमैन इलेक्शन सेल जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात के रहनुमा कैसर शरीफ व दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। लियाकत बलोच ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी का हक है, सबको इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्त पर इलेक्शन मुल्क की अशद ज़रूरत है। सियासत में, इंतखाब में हर पार्टी को हिस्सा लेने का हक हासिल है। इसी तरह इंतखाबात शफाफ हों, गैर जानिबदाराना हों और हर तरह की मुदाखलत बंद होनी चाहिए। लियाकत बलोच का मजीद कहना था कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने तमाम उम्मीदवारों का चुनाव मशावरत के बाद किया है। जमात इस्लामी का इंतखाबी निशान तराजू है जो इंसाफ की नुमाइंदगी करता है। जमात ने ऐसा मंशूर दिया है जिसमें मुल्की मसाइल का हल है। मुल्क के हर तबके के माहिरीन की मुशावरत के साथ एक ऐसा मंशूर दिया है कि जो पाकिस्तान के मसाइल का हल भी पेश कर रहा है और पाकिस्तान में खुशहाली, इस्तेहकाम और इस मुल्क को करप्शन फ्री बनाने के लिए पूरा एक एक्शन प्लान भी दिया है। रहनुमा जमात इस्लामी कैसर शरीफ व दीगर ने शफाफ इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया। शहर में सर्दी की लहर बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। आइंदा हफ्ते के दौरान बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। जी, शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत वो तकरीबन 10 डिग्री तक है और आज रात कहा जा रहा है 3 से 4 डिग्री तक कम हो सकते हैं। हवा में नमी का तनासब 81% बताया जा रहा है। हवा जो सी रुकी हुई है। शहर में जो अगर बात की जाए स्मोक की, तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त यहाँ पे 422 इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है। लाहौर में स्मोक और खुश्क सर्दी ने जो वो सांस गले की बीमारी में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 दिन तक लाहौर समेत गिरदोनुमा में बारिश नहीं है, बादल नहीं है और उसका असर ये हो रहा है कि खुश्क सर्दी में कहा जा रहा है इजाफा होगा और दर्जा हरारत लाहौर का 2 डिग्री से भी नीचे आ सकता है अगले चंद रोज के अंदर। और खुश्क सर्दी से इजाफा होने के बाद जो गले की बीमारियां, डिफरेंट जो जिस तरह सांस की बीमारियां, हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए नुकसानदेह, क्योंकि स्मोक और धुंध जो सी है मिलकर नुकसान करते हैं। तो अगर मोटरवेज की बात की जाए तो मोटरवेज जो सी है अभी कहा जा रहा है कि पीर जो ज़ाहिर शाह तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। M5 जोन सी है, लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी जो सी नारोवाल के करीब धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है। शेखुपुरा के करीब भी कहा जा रहा है कि हद निगाह मुतासिर हो रही है और किसी भी वक्त मोटरवे को बंद किया जा सकता है। मुल्तान रोड पे भी ये हिसाब है, खुश्क सर्दी है। धुंध ने चारों तरफ लपेट में लेना शुरू कर दिया है। पहाड़ों की अगर बात की जाए तो गलियात, मरी साइड, सवात कलाम, इन तमाम साइडों पर जो है वो बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि अगर लाहौर एयरपोर्ट की बात की जाए तो रनवे पे इस वक्त हद निगाह तकरीबन 1 किलोमीटर बताई जा रही है और मजीद कहा जा रहा है सुबह तक अगर 4 बजे तक धुंध पड़ती है सूरत के अंदर ये 100 मीटर से भी कम होगी। वही तैयारी लैंड कर पाएंगे जिनमें कैटेगरी 3 सिस्टम नस्ब है। जद्दा मदीना, PIE, एयर ब्लू, एयर सियाल, ये मुख्तलिफ परवाजें जो सी ये मुतासिर हो रही हैं। रात की बजाय दिन के औकात में परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। मुसाफिर को रश ज़्यादा होने की वजह से दिन के वक्त जो सा फ्लाइट ऑपरेशन जो सा वो मुतासिर होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मौसम की वजह से खुश्क सर्दी और धुंध पंजाब को अपनी लपेट में लिए हुआ है। बहेरा अरब की जानिब से जो 10 तारीख को बादल दाखिल होने थे वो दाखिल नहीं हुए। महकमा मौसमियात की एक और पेशन गोई जो सी वो गलत हुई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बादल 10 तारीख तक मुमकिन तौर पर इम्कान है कि बारिश हो सकती है, लेकिन जनवरी का पहला जो 10 दिन है वो बारिश के बगैर गुजरे। अब देखते हैं अगले मजीद 12 दिन की जो उन्होंने
प्रेडिक्शन दी है कि बादल नहीं है, हो सकता है मुमकिन तौर पे बादल आ भी जाए। उस सूरत के अंदर लाहौर का मौसम जो है ये जो ठठरती सर्दी है इसमें कभी वाक़ होगी, धुंध में कभी वाक़ होगी। इससे जो बीमारियां नज़ला ज़ुकाम बुखार, बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, नमूनिया हो रहा है बच्चों को, बुजुर्ग जो उनसे हॉस्पिटल्स में उनका भी रश देखने में आ रहा है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि गर्म पानी का, नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया जाए, बिला वजह घर से बाहर ना निकला जाए, सर पे कैप, मोटे लिहाफ इस्तेमाल किए जाएं ताकि सर्दी से भी बचा जा सके। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपको खबर दे रहे हैं शहर में सर्दी की लहर बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आइंदा हफ्ते के दौरान बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। गिराम फरोश बेलगाम ब्रॉयलर एक रोज़ कबल 22 रुपये महंगा करके अगले ही दिन 7 रुपये सस्ता। अंडों की कीमत में भी मुसलसल इजाफा जारी है। 11 सब्जियां और 3 फल महंगे हो गए हैं। चिकन और अंडे कुव्वते खरीद से दूर, आवाम महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में एक रोज पहले 22 रुपये बड़ा इजाफा करके महज 7 रुपये की कमी हुई। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 595 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। अंडे 2 रुपये बढ़ने से 396 रुपये फी दर्जन की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियों के दाम बढ़ गए। लहसुन और अदरक 760, प्याज 260, सब्ज मिर्च 180, टमाटर 160 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 5 रुपए बढ़ने से 120 रुपए किलो मुकर्रर, फरोख्त 200 रुपए फी किलो में हो रही है। करेले 450, मटर 300 रुपए, अरबी 250, शिमला मिर्च 230 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। गाजर देसी 65 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। शहरी कहते हैं महंगाई की वजह से बुनियादी जरूरियात से महरूम होने लगे हैं। ज़िंदगी जो सी है ना बड़ी मुश्किल हो गई है गुजारनी। जो कमज़ोर इंसान है ना, जो 1000-1200 कमा रहा है, उसने क्या खाना है? ठीक है, आप देखें 600 रुपये में मुर्गी है, 5 रुपये सस्ती होती है, 30 रुपये रेट बढ़ जाता है। ठीक है, इंसान क्या खाएगा? बहुत मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना। आए दिन रेट से ऊपर नीचे, ये बस इनकी अपनी मंतकें हैं। जब इनका दिल करता है बढ़ा देते हैं, जब दिल करता है कम कर देते हैं। कोई गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। महंगे फल सस्ते न हो सके। सेब काला कुल्लू 400 रुपए किलो, जबकि केला दर्जा दोम 150, दर्जा अव्वल 200 रुपए, कीनू 320 रुपए दर्जन तक दस्तयाब हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।